are basically two types of images. What are actually images? Let's first understand that. Image is formed when the reflected ray meet or appear to meet at a point. तो इमेज तब बनती है जब एक्चुअल रेज मीट करें या appear to meet कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मीट कर रहे हैं. They are not actually meeting but they appear to meet. So there are basically two types of images formed: real image and the virtual image. Now, what is a real image? The image which is formed when the reflected rays actually meet at a certain point. So it is always inverted and it can be obtained on a screen. So a theater is being shown. So when you go in a theater and you watch a movie, so that is a real image and it's being shown on the screen. Virtual images. So here you can see that a small boy is looking at a virtual image of himself and is a little bit shocked to see himself. हमेशा जब छोटे बच्चे अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उनको लगता है एक और छोटा बच्चा वहां पर है. Sometimes they get scared, sometimes they feel happy कि एक और छोटा बच्चा उसके साथ खेलेंगे because they are not aware that it's an image. The image which is formed when reflected rays do not meet actually but appear to meet at a certain point. It is always erect. It cannot be obtained on screen. The virtual image actual rays के meet करने से नहीं बनती. ये उन rays से it just appears कि actual rays backward extend करके ऐसा लगता है जैसे वहाँ meet हुई है. तो वर्चुअल इमेज बनती है. वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं दिखाई जा सकती. हम जैसे अब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम अपने आप को तो देख पा रहे हैं बट हम उसको उस चीज को स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते. और ये वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं, सीधी. Persistence of vision. Persistence of vision is one of the ability of human eye which is amazing. The image that is formed in the retina persist for 1/16th of a second. यानी कि रेटिना पे जो इमेज बनती है वो 1/16th of a second तक वहीं रहती है चाहे हमारी आंखों के आगे से ऑब्जेक्ट हटा भी दिया गया हो. Therefore, if one tries to move 16 still images per second of a moving object in front of our eyes, it appears as if the object is moving. कि अगर कोई हमारे सामने स्लाइड चेंजेस वाली इमेजेस 16 इमेजेस एक सेकंड में अगर हमें दिखाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज मूव कर रही है. दिस इज हाउ एनिमेशन फिल्म एंड मूवीज वर्क. तो इसी कॉन्सेप्ट पे एनिमेशन मूवीज और फिल्म्स वर्क करती हैं. दे आर अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट पिक्चर्स which are moved in a sequence. तो वहां पर एनिमेशन या मूवीज में क्या किया जाता है कि स्लाइड हल्की हल्की चेंजेस वाली पिक्चर्स होती है वो हमें एक पर्टिकुलर स्पीड पे दिखाई जाती हैं जिससे कि हमें वो चीजें मूव करती हुई नॉर्मल स्पीड से नजर आती हैं. However, this movement is so fast, around 24 pictures in a second. अगर हमें मूवमेंट फास्ट करनी है तो 24 पिक्चर्स पर सेकेंड दिखाई जाएगी. अगर नॉर्मल करनी है तो 16 images per second. That it appears as if they are moving. ठीक है, अराउंड 24 पिक्चर्स पर सेकेंड तो हमें वो फास्ट मूव करते हुए नजर आएंगे. अब जैसे आप इसमें देखिए घोड़े पर बैठा हुआ है और आप ह्यूमन बीइंग की पोजीशन भी देखें और घोड़े की टांगों की मूवमेंट्स भी देखें. इसकी देखो, इसकी you will see that there is slight movement. अब इसको अगर ऐसे व्हील को रोटेट किया गया तो क्या होगा कि ये घोड़े पे बैठा हुआ इंसान भी हमें मूव करता हुआ नजर आएगा और जो ये बीच में इस तरीके से ये रिंग है ये भी हमें ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती हुई नजर आएगी. So all these concepts is based on persistence of vision, ability of human eye to see an image even when the object is removed till
1/16 of a second. That's called as a persistence of vision. Power of accommodation. Now let's learn about one more ability of human eye, which is called as a power of accommodation. Accommodate वर्ड का मीनिंग होता है एडजस्ट करना, और पावर ताकत, यानी कि इंसानी आंख में ये काबिलियत है कि वो एडजस्ट कर सके दूर की चीज को देखते वक्त और पास की चीज को देखते वक्त. सो द ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी अ नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट ऑन इंफिनिटी. This ability of human eye is called as a power of accommodation. Now look at the diagram. From the diagram you can clearly understand that when we need to see an object which is far off, which is दूर है, उसको हमें देखना है, तो लेंस से attached ciliary muscles, they are going to get relaxed to focus on objects in the distant object. The ciliary muscles relax and the lens flattens. ठीक है. The ray light rays जो है वो slightly फिर वो कन्वर्ज करवा दिया जाएगा and you will get an image on the retina. बेसिकली जो ये शेप लेंस की चेंज करवा रहा है वो कौन चेंज करवा रहा है? इट इज द सिलरी मसल्स. बट व्हेन वी नीड टू सी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू अस, यानी कि जब हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एट दैट टाइम द सिलरी मसल्स गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द शेप ऑफ द लेंस. सो वो क्या करेंगी कि उसको राउंड से शेप का बना देंगी. ठीक है. दूर की चीज देखने में जो है वो थोड़ा फ्लैट टाइप सा था, मतलब इतना मोटा नहीं था, मतलब. तो इस केस में जब हम पास की चीज देख रहे हैं तो हमारी जो सिलरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं एंड वी आर एबल टू सी. सो अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट पास की चीज का देखने का जो हमारा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है, यानी कि सबसे पास का डिस्टेंस जिसमें हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर. तो हमें अपने पढ़ते लिखते वक्त आंखों से किताबों को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए. और क्योंकि इस कंडीशन में व्हेन यू आर रीडिंग योर सिलरी मसल्स आर इन अ कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, सो योर आईज गेट टायर्ड more quickly while reading, and so your eyes needs a time to relax. आप कभी देखो बहुत लंबे समय तक आप पढ़ रहे हो तो आपको अपनी आंखों में थकावट महसूस, बट अगर आप दूर देख रहे हो देन यू डोंट फील सो टायर्ड कि आपकी आंखों को कोई थकावट महसूस हो रही है, क्योंकि उस टाइम आपकी सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड है. Now let's study about some defects in human eye. Normally, a person can see distant objects and nearby objects through the eyes very clearly. कि एक नॉर्मल इंसान में अगर हम बात करें तो उसको दूर का और पास का बड़ा क्लियरली नजर आता है. A person with a normal eye can read most comfortably at a distance of 25 centimeter. However, this distance can decrease with age. तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई हेल्दी आई है तो उसको दूर का और पास का बड़ा क्लियरली नजर आता है, उसका इमेज फॉर्मेशन बड़ी क्लियर रेटिना पे बनती है. Also sometimes people can see far objects clearly but not the objects that are nearby. लेकिन विद एज कई बार क्या होता है कि लोगों में आइज के डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है. जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि दूर की चीज तो बड़ा क्लियरली नजर आ रही है बट पास की चीज उनको क्लियर नजर नहीं आती. इस बीमारी को फार साइटेडनेस कहा जाता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है. अगर आप देखो तो आजकल हाइपरमेट्रोपिया को हाइप्रोपिया भी कहा जा रहा है. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि इंसान की आई में क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है? प्रॉब्लम ये आनी शुरू हो जाती है कि उसको दूर का तो ठीक है नजर आ रहा है, लेकिन पास वाले में क्या होता है कि इमेज जो है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पीछे बनती है और इस वजह से उसको पास की चीजें ठीक से नजर नहीं आती.
Similarly, some people can see nearby objects clearly but not the far objects. ऐसे ही कई लोगों में क्या होता है कि उनको पास की चीजें तो बड़ी साफ नजर आती है लेकिन दूर की चीजें नजर नहीं आती हैं। इस तरह की बीमारी को नियर साइटेडनेस और मायोपिया कहा जाता है। जैसे ये मायोपिया, इसमें क्या होता है कि इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। सो हेंस चाहे मायोपिया है या हाइप्रोपिया है, दोनों ही केसेस में इनको करेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग अ स्पेक्टिकल्स, यानी कि चश्मे लग जाते हैं इस केस में। हेंस दे यूज अ सुटेबल लेंसेज टू करेक्ट सच विजन्स। So now let's study how these type of vision problems can be corrected by using suitable. So here you can clearly understand with the help of a diagram that this is myopia. What is the problem in the myopia? That the image is formed before the retina. Retina से पहले ही बन जा रही है. Okay. So how this particular problem can be rectified? It can be easily rectified by using a concave lens. Could you see that after using a concave lens, the image is formed in the retina. So the person will be able to see clearly. Similarly, hyperopia or hypermetropia. In that case, what is the problem? That the image is formed beyond the retina. Retina से पीछे बन रही है. So how this problem, how you can rectify it? You can easily rectify using it a convex lens. कि convex lens को use कर लिया जाएगा and you will get an image on the retina and again the problem will be solved. Decrease of vision with age. Sometimes with old age, the lens of the eye becomes cloudy or foggy. This condition is called as a cataract which results in loss of vision. However, this defect can be rectified by removing the old lens from the eye and inserting an artificial lens at that place. कि कई बार क्या हो जाता है कि with age, कि उम्र के साथ साथ जो हमारी आईज का लेंस है ह्यूमन आई का, वो फॉगी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है और ओपेक होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को कैटरेक्ट कहा जाता है। हिंदी में इसको कॉमनली जो लोग जानते हैं जिस नाम से, दैट इज मोतियाबिंद। तो इस आईज की प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो स्पेक्स से नहीं हो सकता, इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि जो लेंस है, जो हमारा नेचुरल लेंस है, उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस इंसर्ट कर दिया जाता है। So this is how the problem can be rectified. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. हेलन केलर ने ये शब्द कहे थे कि अंधा होना इतना बुरा नहीं है जितना कि आंखें होकर भी आपको कुछ ना दिखे। इसका मीनिंग समझे? आप समझ रहे हो, सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को की आंखें और उसको फिर भी कुछ ना दिखे। यानी कि दिमाग की समझ ना हो। अब कितने सारे लोग हैं जो आंखें हैं उनकी, फिर भी उनको समाज में होने वाली बुराई नजर नहीं आती, उनको लोगों का दुख दिखाई नहीं देता। तो ये फिर आंखें होने के बावजूद भी अंधे होने वाली बात होगी ना, कि आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हो। और अगर उसके कंपैरिजन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि ब्लाइंड है बट वो बहुत अच्छे काम कर रहा है समाज के लिए और एक बहुत अच्छा इंसान बनता है, तो फिर यानी कि वो तो अंधा होने के बावजूद भी आंखों वाला हो गया। और जो आंखें वाले होने के बावजूद भी बुरे काम कर रहे हैं और बुराई का साथ दे रहे हैं
और इग्नोर कर रहे हैं, तो वो सब तो फिर आंखें होने के बावजूद भी अंधे होंगे ना।